थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਫਦ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਕਾਰ। ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਮੋਗਾ ਦੀ 55 ਸਾਲਾ ਸਪਨਾ ਹੰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਾਰ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਪਨਾ। ਦੂਜੀ ਬੋਟ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਵਾਨੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਗਈ ਸੀ ਆਸ਼ਾ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 11। ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਯਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ। 4 ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ। ਆਪ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਮ। ਨਵੇਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। 6 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਾमान ਜ਼ਬਤ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕ ਤੱਕ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਡੈਡਲੌਕ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਜਟ ਤੇ ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ बढ़िया हुआ क्योंकि इस वेले की स्थिति की गल की जाए देखो स्टेट ऑफ हॉर्मोज जिथे पहला 150 जहाज जिहड़े लंघदे सन व्यापार ठीक ठाक चल रहा सी। जो लड़ाई जंग लगी है उस समय 10 तो 15 उन्होंने की गिनती हुई पर हाल फिलहाल अज की कड़ी इस वेले की गल की जाए तो उही गिनती 4 तो 5 हो गई है क्योंकि खतरा मंडराया होया है वधदा जा रहा है। जिस तो बाद एक गल ते जिहड़ी गलबात हो रही है उस दे विच किस तरीके दे नाल की कुछ नतीजे निकलणगे और की गलबात इस तरीके अगे भी जारी रहेगी और गलबात होएगी कि बहुत सारे सवाल लगातार बने हुए ने। इस नूं लैके शुरुआत करदे बुलेटिन दी। तां पाकिस्तान दे विच ईरान अमेरिका दे विचाले वड्डी मीटिंग चल रही है। थोड़ी देर दे विच दस्सिए कि पाकिस्तान दे पीएम नूं ईरान दा डेलीगेशन मिलेगा और 70 तो ज्यादा लोग ईरान दे जिहड़े ने पहुंचे हुए ने पाकिस्तान दे विच जिहड़े कि गलबात करनगे मुलाकात करनगे और फिर अमेरिका दा वफद जिहड़ा है शाहबाज शरीफ दे नाल मुलाकात करेगा। देखो थोड़ा जिहा सब तो पहला शुरुआत दे विच ही दस दवा 4 तो अहम 5 पॉइंट जिहड़े ने क्योंकि सब तो पहला जिक्र खास है कि दोवें देश जरूर गलबात करन लई पहुंचे ने ईरान अते अमेरिका पर एक म्यूचुअल मीटिंग नहीं होएगी यानी कि तिन्ने देश इकट्ठे नहीं बैठणगे। पहला पाकिस्तान दे नाल ईरान दी गलबात होएगी उस तो बाद अमेरिका दी गलबात होएगी यानी कि वक्रो वक्रियां ये मीटिंग्स जिहड़ियां ने ओह होण जा रहीआं ने पीएम शाहबाज शरीफ दे नाल। कुल मिला के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान इस वेले विचोलिए की जिहड़ी असीं कह सकते हैं सौखी भाषा च समझिया जाए तो वह भूमिका अदा कर रहा है और इत्थे शांति बहाल करन नूं लैके कदम जिहड़ा है वधाया गया है। पहली मीटिंग एक तां देखो समझना होगा ये होण जा रही है जिस तरीके 40 दिन तो ज्यादा हो चुके ने जंग लगी नूं। बेशक सीज फायर दी एक खबर आ गई कि जंगबंदी हो गई पर अजिहे हालात नजर नहीं आए क्योंकि उस तो बाद भी लगातार लेबनान दे विच जिस तरीके हमले हो रहे हैं इससे तो ज्यादा नाराजगी वधी हुई है ईरान दी। और उस तो बाद दूसरे पासे अमेरिका दे जदों ट्रंप दा ये बयान आ जावे वो कह रहे होण कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज दा असीं खुलवा देवांगे खुल जाएगा अपने आप खुल जाएगा तो फिर इस करके बहुत सारे सवाल इस वेले वड्डे जिहड़े ने वो बने हुए ने। तो खास मेहमान साडे नाल फोन लाइन ते इस वेले मौजूद ने और साडे नाल ग्रुप कैप तो डॉक्टर आनंद स्वरूप ने बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते तुहाडा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ आ रही है ਡਾਕਟਰ आपकी आवाज आ रही है ਜੀ मैडम ਜੀ आ रही है आवाज आपकी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਅਸੀਂ समझना चाहेंगे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। हाँ, ऐसा गुरजोत जी, ये जो पीस वार्ता हो रही है ये पाकिस्तान का इसका रोल एक तरीके से कह दीजिए मात्र एक मैसेंजर या एक तरीके से एक अरेंजमेंट का है। उनका ऐसा कोई क्रेडिबल स्टैंडिंग तो पूरे वर्ल्ड में है नहीं। दूसरी बात आती है कि अमेरिका और जो ईरान है 40 दिन के वॉर के बाद में दोनों ही देश थक चुके थे, उनका असला भी कम हो चुका था। 12,500 स्ट्राइक करने के बाद में ईरान के हौसले अभी भी बुलंद थे, इतने नुकसान पहुंचा पा रहे थे। अमेरिका को एग्जिट मिल नहीं रहा था, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में मादुरो को उठा लिया था और एक ही दिन में वॉर खत्म हो गया तो यहाँ पे उनको 40 दिन तक कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तो उनको भी, क्योंकि ट्रंप को भी अपना अभी मिड टर्म में जाना है नवंबर के अंदर, $200 बिलियन का उन्होंने पेंटागन ने प्रोजेक्ट पेश कर दिया कि इतना खर्चा हमारे इस वॉर में हो गया है। साथ में अगर आप देखते हैं तो 39.5 ट्रिलियन का इनका अपना खुद का डेट है, $1 ट्रिलियन की एनुअल सर्विसिंग होती है। तो इसमें ज्यादा दूर होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल जो कॉस्ट है अमेरिका की, उसके चलते इतना कंपल्शन हो गया उन्हें कि थोड़ा सा भी रास्ता कहीं पे दिखा तो वहाँ पे ये दोनों कंट्रीज आकर के पीसफुल टॉक के लिए तैयार हो गई। क्योंकि एक 40 दिन का आउटराइट वॉर वेज करना किसी भी कंट्री के लिए या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान तो खाली एक कह दीजिए फैसिलिटेटर है, उसका कोई रोल नहीं है। दोनों ही कंट्रीज चाहती थी कुछ ऐसा मध्यस्थ जगह कहीं मिल जाए जहाँ पे वो बैठ करके इस पे बात कर पाए। रही बात इन दोनों कंट्रीज की पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान पे दोनों ही कंट्रीज ना तो ईरान विश्वास करती है। 2024 के अंदर ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे बॉम्बिंग हुई थी और ईरान इनके ऊपर एलिगेशंस लगाते थे कि जैश अल अदल जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, वो ग्रुप ईरान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान का ये कहना था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनकी फंडिंग यहाँ से हो रही है। तो और कहीं बात अमेरिका की पाकिस्तान पे विश्वास की तो सारी विश्व जानता है कि ओसामा बिन लादेन उन्हीं के यहाँ छुपा हुआ था और अमेरिका को अपने स्पेशल फोर्सेस उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो ये एक मजबूरी थी ईरान और अमेरिका की। लेकिन पाकिस्तान को तो लगता है डॉक्टर आनंद, पाकिस्तान को तो लगता है उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे हासिल कर ली है। नहीं, ऐसा पाकिस्तान एक तरीके से कह दीजिए मोर लाइक अ रोल ऑफ अ पोस्टमैन दे आर डूइंग। उससे ज्यादा उनका कोई है नहीं, कह दी एक मध्यस्थता के लिए एक जगह मिल गई। थोड़ा सा चीन ने ईरान को थोड़ा पीछे से बैक एंड चैनल से चीन ने ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया है कि जल्दी इसको करे, क्योंकि चीन का काफी जो वहां से एनर्जी सप्लाईज हैं ईरान के थ्रू है, तो एक चीन का प्रेशर एड ऑन हुआ है। अदरवाइज मुझे तो ये लगता है कि दोनों ही देश चाह रहे थे किसी तरीके से वो किसी पीस टॉक पे आ जाए, कोई मध्यस्थता हो जाए। उससे ट्रंप को जो उन्होंने जल्दबाजी में ईरान को कम आंक करके डिसीजन लिया था कि 40 दिन से उनका खामियाजा उनकी फौजें भुगत रही हैं और खाड़ी के सारे देश भुगत रहे हैं जहाँ पे ईरान के कॉन्फ्रेंस स्ट्राइक चल रहे हैं और अब तो इसराइल के ऊपर भी क्लस्टर बॉम्बिंग चालू हो गई। तो एक प्रेशर क्रिएट हो चुका था यूएसए के ऊपर भी। ईरान ने 12,500 हिट्स लेने के बाद भी अपने हौसले बरकरार रखे और इनको इतने दूर ले आए। ये एक तरीके से कंपल्शन है, जबरदस्ती थी दोनों के ऊपर कि बस अब ठीक है, हो जाए ऐसा कि हम बैठ के बात कर पाएं। जो हाल फिलहाल ताजा बयान ट्रंप का आया है उसको भी हम भुला नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज तो अपने आप खुल जाएगा। इसको किस तरीके से देखें, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से आप ईरान बोल रहे हैं उनके हौसले बुलंद हैं, लेकिन जो ट्रंप का एटीट्यूड है वो भी बरकरार है। और इसमें ये भी एड ऑन कीजिए क्योंकि हमारे पास देखो बहुत समय सीमित रहता है। आनंद जी, मैं चाहूंगी फटाफट से जो सवाल है वो मुख्य तौर पर आपसे ले लूं। हॉर्मुज के लिए अपना प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि वो खुल जाएगा तो अभी तक तो खुला नहीं है। हर रोज 150 लगभग टैंकर्स निकलते थे, अब खाली 7 या 10 ही निकल पा रहे हैं। उससे पहले तो खाली यही निकल पाते। उन्होंने माइंस वहाँ पे लेआउट कर दी है, जो माइंस का पता उन्हीं को ही है। और उनके कह दीजिए IRGC की जो असॉल्ट बोट्स हैं, रिमोट कंट्रोल एक्सप्लोसिव बोट्स, वो अभी भी वहाँ पे सक्रिय है। 25% के लगभग 75% डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो अपने आप तो कुछ नहीं करेगा। ईरान ने उस हॉर्मुज स्ट्रेट को पकड़ रखा है और चोक कर दिया है, जिससे पूरे वर्ल्ड की एनर्जी सप्लाईज को। अच्छा, जो मीटिंग में बातचीत
होनी है या हो रही है, जो जानकारी मिल रही है कि अभी थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। अलग अलग देखो, एक तो ये मीटिंग हो रही है क्योंकि आमने सामने भी नहीं बैठ रहे, ये भी मुख्य मुद्दा, शायद वो बैठते, हालांकि बहुत सारे इश्यूज हैं इसलिए नहीं, अभी पहली मुलाकात है, हालांकि हो सकता है कि इसके बाद भी ये मुलाकात का दौर जारी रहे, लेकिन शुरुआत एक किस्म से होगी। क्या कुछ, एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे को लेकर अमेरिका अड़ा हुआ है जो हमें अभी तक समझ आया इस पूरे चैप्टर में, और दूसरी बात ईरान अड़ा हुआ है कि जब तक ये जो जंग बंदी के नाम पर खेला हुआ है कुल मिलाकर, क्योंकि लेबनान में अभी भी जो हमले जारी हैं, तो उसको क्यों नहीं बंद किया गया, और परमाणु जो प्रोग्राम है ईरान का उसको लेकर लगातार अमेरिका का बयान है। तो ये तीन मुख्य मुद्दे रहेंगे डॉक्टर आनंद। देखिए ऐसा है गुरजोत जी कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, डिस्कशन पीस टॉक्स वॉर से पहले भी चल रही थी। 40 दिन से पहले अमेरिका एग्रेसर थे, उन्होंने पीस टॉक से चलते हुए अटैक कर दिया। तो एक तरीके से मानिए कि अविश्वास तो पार्टीज में अंदर खुद ही है, इसलिए फेस टू फेस बात ना कर पाना पहली बात। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है कि दे वांट टू थ्रैश आउट की इतने इतने पॉइंट्स हमारे हैं और बीच में अपने पॉइंट रखे जाए, सामने आकर के एकदम सामने, क्योंकि विश्वास तो अब एक दूसरी पार्टी पे रहा नहीं इतनी लड़ाई होने के बाद, 40 दिन नुकसान के बाद में। तो अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले डिसाइड हो जाए कि इन पॉइंट्स में हम बात करेंगे, फिर वो दोनों वार्ता आमने सामने बैठ के हो, तो उसी में कुछ हो पाएगा। अगर पहले ही स्टेज पे जो पॉइंट्स प्रपोज किए गए हैं वो ही दूसरी पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस एक स्टेज से आगे हम जा ही नहीं पाएंगे इस पीस वार्ता के। तो बिल्कुल, और अगर बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है, ईरान की बात करें या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में? क्योंकि जो अभी की बात की जाए, देखो जंग के दौरान तो जो जानकारी है 10 से 15 जहाज वहां से गुजर रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन अभी उनकी गिनती 4 से 5 हो गई है। इतना ज्यादा रिस्क जो है वो कोई लेना नहीं चाहता, जैसे आपने भी बताया माइंस जो है वहां पर बिछाए हैं, कहाँ हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्क रहता है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी या पाकिस्तान इसमें क्या मदद कर पाएगा, तो इसमें साक्षात स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा। या तो अमेरिका के लेवल की कोई पावर है जो गारंटी दे इसके अंदर, इसलिए ईरान चाह रहा था कि रशिया और चाइना को इसमें इन्वॉल्व किया जाए कि अगर यूएसए उस बाउंड्रीज को या उस कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है, तो कोई ऐसा देश तो सामने खड़ा हो जिसका कुछ थोड़ा सा भी डर हो अमेरिका को। तो पाकिस्तान के रहते हुए पाकिस्तान का इसमें होना ना होना एक बराबर है, और इसमें जब तक कोई समकक्ष कोई आकर के पावरफुल कंट्री सामने खड़ी नहीं होती अमेरिका के, जो इसके अंदर वॉर गारंटी दे कि अब इसके बाद में ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो गए हैं, आपस में डिसाइड हो गया है, अब इसके ऊपर आप टिके रहे दोनों, तो दोनों कंट्रीज के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। अमेरिका तो ट्रम्प साहब तो किसी का प्रेशर मानते ही नहीं है, और रशिया और चाइना आते तो फिर भी कुछ बात बन पाती। पाकिस्तान तो पहले उन्हीं की दी हुई ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं। तो आप देखिए कि पाकिस्तान के पास कोई सोशल इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं है, तो उनका एक खाली कह लीजिए एक तरीके से एक लोकेशन है या एक होटल है जहाँ पे लोग गए हैं और बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं है, और ना ही वो कुछ हेल्प कर पाएंगे अगर अमेरिका उसको फॉलो नहीं करता है टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर। आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि सिक्योरिटी की बात की जाए, पाकिस्तान में इस तरीके से छावनी बना दी गई पूरी तरह से, हालांकि वहाँ ज़रूरत भी थी क्योंकि बहुत बड़े डेलीगेशन ईरान से आ रहे हैं, अमेरिका से गए हैं खास मेहमान, तो उसके चलते एक तो वो चैप्टर है। दूसरा आपसे ये समझना चाहेंगे, जंग में इस समय ईरान कहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका लगातार धावा बोल रहा है, तो डिफेंस मोड पे तो है ही, लेकिन अभी की बात की जाए, अगर अभी भी जंग जारी रहती तो क्या कुछ आने वाले समय में हालात रहेंगे, भारत के नजरिए से भी बताएं। देखिए, ईरान की स्थिति तो काफी हद तक कमजोर हो चुकी है इस वक्त, और अगर आप आज का देखते हैं न्यूज, जिसमें उनके जो अराकची आ रहे थे और कालीबाफ आ रहे थे, उस प्लेन के अंदर उन्होंने बच्चों की 168 बच्चों की फोटोग्राफ्स लगाई थी कि इतने बच्चे हमारे स्कूल के। तो एक तरीके से इमोशनल कार्ड भी प्ले किया गया है ईरान के द्वारा इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। तो साइकोलॉजिकली इमोशनल कार्ड वही बंदा प्ले करता है जो अब ये मान चुका है कि उसका नुकसान हो रहा है और वो ज्यादा अच्छी परिस्थिति में इस वक्त नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ईरान अब एक तरीके से कुछ प्रेशर में आ गया है, कुछ उनकी स्थितियों को लेकर के, कुछ उनके मेजर इंस्टॉलेशंस को हिट करने से, कुछ उनकी सारी साइट्स को हिट करने से, मेजर ब्रिजेस को हिट करने से, ऑयल इंस्टॉलेशन से। तो अमेरिका ने प्रेशर तो क्रिएट कर दिया है, वरना कोई भी देश जब अपने पीस टॉक्स के लिए आते हैं तो वो अपने वहाँ का दुख जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से पब्लिकली ऐसे शेयर नहीं करते। उन्होंने वो शेयर किया, आई पर्सनली टेक इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो ईरान थोड़ा सा अपने स्टैंड में वीक हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो डॉक्टर आनंद स्वरूप साडे नाल
मौजूद सन खास मेहमान रखिया माहिर और उन्होंने वालों सारी गलबात जी अपने तौर पर रखी गई है। उन्होंने सीधे तौर पर यह दसन की इस वे स्थिति कोशिश की है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी भूमिका इस नहीं है। हालांकि मीडियोकर के तौर पर जरूर बैठा है, गलबात करा रहा है, पर कितना मन्निया जाएगा, ईरान और अमेरिका कितना भरोसा करते हैं पाकिस्तान से, यह भी बहुत अपने आप के बड़ा सवाल है जो इत्थे लगता है कि कोई खास भरोसा जोड़ा है वो नहीं है। तो देखना होगा कित्थे तक एक गलबात जी पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं, उधर पंजाब दे विच नकली दुध का कारोबार किस कदर वाधा जा रहा है, इसनूं लैके सांसद चरणजीत चन्नी ने लोगों को सुचेत किया है। चन्नी ने न सिर्फ डेयरियां ते बल्कि 70% जो दुध है वो नकली होने का दावा किया, बल्कि खुद यूरिया अगे बढ़ांगे, गल करांगे वृंदावन हादसे की जिस दे विच जान गवाउण वाले श्रद्धालुओं का अंतिम संस्कार किया गया। लुधियाना और जगराओं के दसिए कि संस्कार किया गया है। गमगीन माहौल के परिवार ने अपने परिवारक मैंबरों को अंतिम विदाई दी है। तो सीएम भगवंत मान भी जगराओं पहुंचे, उत्थे श्रद्धांजलि दी गई। हुण तक की गल की जाए 11 मृतक देहां जिहड़ियां ने वो बरामद हुई ने और 4 लोग अजे भी जिहड़े लापता दसे जा रहे हैं। और सीएम भगवंत मान दे वल्लों खुद इसका जिक्र किया गया है। यमुना नदी के विच रेस्क्यू ऑपरेशन जिहड़ा अजे किया जा रहा है, उन्होंने कहा। और सरकार दुख की घड़ी दे विच परिवारां दे नाल खड़ी है और पंजाब दीआं टीमां दा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मौके ते वो भी मौजूद ने। सीएम भगवंत मान ने दस्सिया है वृंदावन हादसे च मरण वालियां दी गिनती दस्सिए 11 हो गई है और गोताखोर अजे भी जिहड़े होर 4 लोग ने उन्हां नूं लभ रहे हैं। खुद को अपना याद आ जाती है सारी चीजें। ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 15-16 ਦੀ ਸੀ, ਬੈਠੇ 32 ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਾਨਿਕ ਟੰਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਸੀ ਕੱਲ, 5 ਲਾਪਤਾ ਨੇ, 4 ਰਹਿ ਗਏ ਲਾਪਤਾ ਤੇ ਬਸ ਲਾਪਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਪਾਈ ਜਿਹਨੇ ਉਹੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ, ਮਾਨਿਕ ਟੰਡਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਗਰਾਉਂ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਿਵੇ ਇਕੱਠੇ ਬਣਨਗੇ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਆ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ 5 ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਖਨਾਇਕ ਘਟਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ
ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਹੀ ਘਟਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਕਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 11 ਡੈਥਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ 15 ਯਾਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਬਾਕੀ 4 ਅਜੇ ਯਾਤਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਫੀ, 15 ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਲਟ ਗਈ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਹੀ? ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੀ ਹੈ। 20 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 40 45 ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿੱਚ, 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਹਜੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਜੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 12 ਜੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। कहना चाहेंगे जिस तरह से जगरांव के लोग गए हुए थे और वहां हादसा जो हुआ है, कई लोगों की जान चली। सबसे पहला तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾव ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਆਂ 7 ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਰੋਕਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸੰਜੀਵ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ में ज्यादा रश हो गया, दूसरी किश्ती चलते हैं। गुरबानी च लिखा जिसको रखे साइया मार सके ना कोई, बालना बंका कर सके चाहे जग भावे बैरी होए, जिसनू रखने वाला रख लेंदा। ये देखो जगराउं तो अज बहुत बड़ा दुख दी अज लहर फैली हुई है, हर घर च सोग है। अज मैं अपने वालों सेंट्रल वाल्मीकि सभा इंडिया का नमाना या सेवादार बतौरे ऑल इंडिया प्रधान उन्होंने जिन्ने भी व्यक्ति, एक मोगे तो भी हंस परिवार दे विच बीबी गई है, उन्होंने सारे ही परमात्मा के चरणों च अरदास करते हैं
कि सच्चे पातशाह ये जिहड़ी रूहां आप जी दे चरणें च आईयां इन्हां नूं अपने चरणें थां देई ते जिहड़ा पिछे परिवार है उन्हां नूं तेरा पाना मनण दा ताकत देई। ये लिखा है कि करदे चलो गल हरी दी, इस तो वड्डी गल नहीं अवतार भरोसा तन दा अज है फिर कल नहीं, कल दा किसी नूं कोई पता नहीं किहड़े टाइम क्या हो जाना। ये अज जिहड़ी घटना हुई है जगराओं विखे उन सारिਆਂ ਨੂੰ ही ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ रल के परमात्मा प्रभु दे चरणों च अरदास करिए भी जिहड़ी रूहां आप जी दे चरणों च आईयां